Hello and very warm welcome everyone. On behalf of SR College, this is Gautam Kumar and we would like to welcome Shreya Salathia. She has qualified, recently concluded civil services examination. She has secured rank 52. On behalf of SR College, we would first like to wish her and we will congratulate her, and then we would like her to share her journey with other aspirants so that they could gain something out of her journey. Thank you so much, sir, for your warmest regards. My name is Shreya Salathia और मैं 52nd रैंक के साथ इस बार JKS 2023 एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया है. This was my second attempt. First attempt I reached till interview stage and चंद कुछ 15-20 मार्क्स से मैं लिस्ट से रह गई थी, which concluded in January. And journey तो काफ़ी लंबी रही. It took me almost 4-5 years to reach here. But to be in civil services मैंने कॉलेज से ही सोच लिया था in the first year itself. So a little brief about me is मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स में ही MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ से, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर दिस. एंड मीन वाइल मैंने साथ साथ में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा डिस्टेंस मोड से इग्नू से, दैट टू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, and I was preparing for past 4-5 years. For preparation in the first year itself of my college, I started reading newspapers diligently. So I think that was the foundation base to start my preparation. So this is a little brief about me. Okay, share one thing that is very distinct about you is that you have completed your graduation as well as your post graduation in public administration. You also decided to keep public administration as your optional. For those aspirants who have either decided that they are going to go for public administration or those who are actually thinking about this optional, what are your suggestions? आपका experience क्या रहा है with this optional? Sir, as in the first year college of itself, तो हमारे पास वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं. ऑनर्स हमें सेकेंड ईयर में मिलता है बेस्ड ऑन मेरिट. तो आई हैड चूजन पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स. तो जब मैंने फर्स्ट ईयर में पबाड के बारे में पढ़ा तो द इंट्रिकेसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटी बेसिकली हमें थोड़ा ज़्यादा जोर होता है बेसिक ग्रेजुएशन लेवल पे, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. और एज आई सेड कि मेरा इंटरेस्ट बन गया था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगी. तो मुझे लगता था कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ कि इट इज़ नॉट एज प्रोफेशनल कोर्स. इवेंचुअली इट इज़ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स ओनली. एज इंजीनियरिंग में तो आपके पास कंपनी प्लेसमेंट्स हैं, ये सब है. बट देन आई थॉट कि लेट्स जस्ट गिव डिलीजेंटली वन साइडेड फोकस. शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, मैं बाकी चीज़ों में जाऊंगी. एंड आई हैड थॉट कि अगर नहीं होगा तो फिर फ्यूचर में मैंने बाद में सोचा जब तैयारी के 1-2 सालों की मैं पब्लिक पॉलिसी लाइन में भी घुस सकती हूँ. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई वुड से कि आपको बिफोर गेटिंग इनटू सर्विसेज इट प्रिपेयर्स यू टू बी इन सर्विसेज. This whole preparation prepares you to be in services, but particularly public administration, it gives you an insight into what you're going to get landed into. So all the administrative theories and they are very practical. I don't know about other subjects, but particularly about PubAd is that what you read is you can actually see it applying around you in your daily life also. Whatever thinkers you read and other Indian polity and other administration related theories. So I would say that it is a very good subject if you want to go ahead. Otherwise, if you don't land up in services, you would, you can continue into policy sciences and other arena related to it. So I think it is a really nice subject. Shreya, one thing that, no, one very important aspect of this optional has been that एक बेसिक कंफ्यूजन रहता है और बच्चे काफ़ी इस चीज़ को पूछते हैं कि सर ये पेपर बहुत ही डायनेमिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डायनेमिक, टू डायनेमिक, और बहुत सारे बच्चे इस वजह से they tend to fear public administration. What do you think? Is that the case, or there is something other side to the story as well? सर डायनामिक तो डेफिनेटली है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे जैसे हम जब पढ़ते हैं तो इट कीप्स इवॉल्विंग विद टाइम एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड सिचुएशंस. बट द क्रक्स इज दैट
इफ यू आर बेटर प्रिपेयर्ड पहले से ही, कि आपको पता है कि पूरी प्रिपरेशन इन्वॉल्व ही डायनामिज्म करती है, आपको करंट अफेयर से अब 2 दिन भी छूट जाओगे तो यू नो दैट कैन कम इन योर एग्जाम, इन योर प्रीलिम स्टेज और एनीथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि ये पबाड अगर डायनामिक है तो आपकी बाकी प्रिपरेशन को भी होलिस्टिक बनाता है। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहिए, उसके अलावा आपका GS2 बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो पर्टिकुलरली एक पूरा पेपर है मेंस में। आप PRS जैसे वेबसाइट्स हैं, कोई भी नया बिल पास हो रहा है आप उसके बारे में थोड़ा रीड थ्रू कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये टैप तो रखना एज अ प्रिपरेशन में ही होल इम्पोर्टेंट है। तो पबाड पर्टिकुलरली अगर आप उसमें भी टैप रखोगे तो आपका होलिस्टिकली पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। सो डायनामिज्म है, डेफिनेटली है, बट टू बी एन ऑफिसर यू नीड टू बी अवेयर ऑल्सो, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ बेनिफिट ऑफ गेटिंग इनटू सर्विसेज। सो वो मैनेज हो जाता है ऐसे। Okay. Shreya, one very important, as you know, when you were sharing your journey with us, तो आपने कहा first attempt you appeared for your interviews, second attempt you qualified, but ये first attempt interviews to second attempt interviews, ठीक है, इसमें आपने rejection face किया. How did you handle that? क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग विच एवरी एस्पिरेंट हैज द कैपेबिलिटी टू फेस, क्योंकि रिजेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत हेल्दी तरीके से नहीं देखते हैं, तो उसकी वजह से क्या इश्यूज हुए एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट, वो एक चीज है जो आई वुड लाइक यू टू शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स। सर पहले तो मैं ये कहूंगी कि आई एम प्रिविलेज इनफ टू बी कंटिन्यूइंग दिस जर्नी फॉर सो मेनी इयर्स। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते, रूरल बैकग्राउंड से है, उन पे प्रेशर है कि उनको घर के लिए कमाना है। थैंकफुली मैं थोड़ी प्रिविलेज हूँ कि माँ बाप मतलब इनफ कमा रहे हैं कि वो मुझे थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट वन सेइंग दैट कि मुझे सपोर्ट था कि मैं ये जर्नी ले सकूं और इतना वेट कर सकूं। सेकेंडली रिजेक्शन, definitely I just missed the list by 15 to 20 marks, and that time I was not even in the state, I was out of state. And when the results came it was a shattering moment for me, because जब आप इंटरव्यू स्टेज तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो ड्रीम एकदम आपके आंखों के सामने होता है, और फिर जब वो एकदम से टूटता है तो फिर टूटने के साथ वो एक रियलिटी चेक था कि 20 डेज 25 डेज में मेंस है, एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। पिछले 1 साल से वी वर स्टक इन द प्रोसेस ऑफ मेंस, रिजल्ट्स केम, प्रीलिम्स केम ऑफ द सेकेंड अटेम्प्ट, इंटरव्यू केम, एंड मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, इतनी राइटिंग भी नहीं की थी। बट थैंकफुली SR के साथ मैंने पिछले साल इतनी अच्छी आंसर राइटिंग करी थी जब कोविड का थर्ड वेव था कि इट हेल्प मी थ्रू। और फिर जब मैंने दिया अपना, आई जस्ट हैड वन थॉट कि सबका अपना एक ड्यूटी होता है, लाइन ऑफ ड्यूटी है, सोल्जर्स का लाइन ऑफ ड्यूटी है, सबका लाइन ऑफ ड्यूटी है, टीचर्स का लाइन ऑफ ड्यूटी है। तो मेरा लाइन ऑफ ड्यूटी है दैट आई हैव टू स्टडी एंड जस्ट गिव दिस एग्जाम एंड नॉट थिंक ऑफ व्हाट फर्दर, व्हाट नेक्स्ट। So when I went to mains exam, I just thought this. I was very happy and cheerful in the mains. In fact, and very happily I gave all the papers, completed all the papers. कि हो गया बस, मेरा कर्म खत्म है। I was not expecting, but the second interview came. That time also I thought कि let's not think about results. Let's just hope for best. तो I would say कि rejection एक तरीके से it gives you a chance to prove yourself again that you have still got it in you. अगर आप उस मोमेंट पे गिव अप कर देंगे सो ये ब्यूटीफुल टाइम में शायद आज नहीं देख पाती। इफ आई वुड हैव गिवन अप लॉन्ग बैक। सो मैंने वो गिव अप नहीं किया उस सिचुएशन में, और मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट वन मोर ट्राई। सो आई थिंक एस्पिरेंट्स को मैं यही कहूंगी कि गिव योरसेल्फ द फ्रीडम टू पुश योरसेल्फ टू बियॉन्ड योर लिमिट्स। आप वन स्टेप एट अ टाइम करते जाएंगे तो आप बहुत आगे पहुंचेंगे। मेंस के टाइम आप मेंस का सोचो, इंटरव्यू का मत सोचो। यूजुअली ऐसा होता है एस्पिरेंट्स डे ड्रीम करने लग जाते हैं, कि हमने भी किया है शुरुआत में जब मैं तैयारी की, प्री से पहले ही सोच रहे हैं कि मेंस में क्या लिखा करेंगे, ऐसे कैसे पेपर्स कंप्लीट किया करेंगे। सो बी इन द प्रेजेंट, बी इन द मोमेंट, लिव दैट मोमेंट, बिकॉज अभी भी हम वो टाइम मिस करेंगे कि मेंस का टाइम मिस करेंगे। ऑफ कोर्स इट इज रिलैक्सिंग दैट वी हैव मेड, बट वो टाइम भी एक स्पेशल टाइम था। सो बी इन द मोमेंट, एक पुश के साथ लगातार पुश करो, एंड वन डे आप वो फिनिश लाइन के क्रॉस पहुंच जाओगे। श्रेया, जैसा आपने कहा कि नो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डेज आपने स्पेसिफिकली व्हेन इट केम टू योर सेकंड अटेम्प्ट आपने राइटिंग स्किल्स और इन चीज़ों पर काफ़ी फोकस किया। नाउ जब एक एस्पिरेंट शुरुआत की तैयारी होती है उनकी, सो दे टेंड टू डू व्हाट, दे टेंड टू
not give this whole process that importance. That means they tend to consider कि ये आंसर राइटिंग ये कोई ऐसी चीज है जो लेटर ऑन किसी स्टेज में हो जाएगा. Now, according to you, what is the importance there of things like answer writing, being in that very framework? और दूसरी बात ये कि इस प्रोसेस को किस तरीके से अप्रोच किया जाए, बिकॉज it's not a day, it's not something that you achieve on day one. It is something that takes time. तो उस प्रोसेस पर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है? सर फर्स्टली आई वुड से कि पहले तो आपका कोर जो है प्रिपरेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आपकी कोर तैयार होगी, आपकी बेसिक, अब ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिटी पढ़ी ही नहीं है, लक्ष्मीकांत एक ही बार देखी है ऊपर ऊपर से और आप आंसर राइटिंग में घुस जाओ, वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी. एटलीस्ट टेक 6 months टू कंप्लीट ऑल योर बेसिक एनसीईआरटीज और बेसिक जनरल स्टडीज जो आपका कोर सिलेबस है. एंड उसके बाद आप PYQs लाइक एवरीवन सेज इट्स द बाइबल, आप उन्हें उठाओ और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करो. आप रैंडम क्वेश्चन से बेटर है, मुझे लगेगा लोग बहुत चीजें रिकमेंड करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, आप उधर से आंसर राइटिंग करो, बट मैं रिकमेंड करती हूँ आप सब छोड़ो, आप बस PYQs उठाओ. डेली के आप 2 सवाल भी उठाओगे इनिशियली, आप फिक्स कर दो टाइम. अगर आप सुबह प्रेफर कर रहे हो सुबह का रखो, शाम को जब दिन की पढ़ाई आप खत्म करते हो अपने जितने स्लॉट्स हैं वो टाइम रखो, बैठो, वो 2 आंसर्स को आप प्रैक्टिस करो. इनिशियली आपके आंसर हो सकते हैं बहुत ही बेकार हो आपकी, जैसे अब मैंने जब इधर आंसर्स लिखे थे मेरी इंट्रो बड़ी चली जाती थी, बॉडी छोटी हो जाती थी 10 मार्कर्स में. तो मुझे रिकमेंड किया जैसे यहाँ पे टीचर्स ने कि क्रिस्प रखो 10 मार्कर्स में. तो वही है, जब आप शुरू करोगे तो यू विल फंबल एंड आपको गलत आंसर्स होंगे, बुरे आंसर्स होंगे, बट यू हैव टू स्टार्ट. जितना अर्ली आप स्टार्ट कर रहे हो उतना आपका आंसर राइटिंग रिफाइंड हो जाएगा. जैसे मैंने कहा कि इस बार अटेम्प्ट में टाइम ही नहीं था, 20-25 days थे, मैं बहुत आंसर्स लिख ही नहीं पाई. आई जस्ट हैड टाइम टू रिवाइज माई ऑप्शनल एंड माई जनरल स्टडीज, बट आई हैड प्रैक्टिस सो मच बिफोर. 1 साल 2 साल इतना प्रैक्टिस किया था दैट इट हेल्प मी गेट थ्रू दिस टाइम. सो जितना प्रैक्टिस करोगे देन यू गेट टू नो कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. और लाइक देर इज वाटर एंड देर इज अ कंपार्टमेंट, तो वाटर क्वेश्चन है और कंपार्टमेंट है कि आपको जवाब कैसे देना है. तो जैसा सवाल पूछ रहे हैं उसी तरीके से आप ढल के उसमें आप जवाब तभी दे पाओगे जब आपने बहुत प्रैक्टिस की है इनिशियली. वरना मैं देखती हूँ आंसर्स ऐसे होते हैं कि हड़बड़ाहट में आप सब कुछ ही लिख देते हो, बट आपको सब कुछ नहीं लिखना है. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. हमको लगता है हमें सब कुछ लिखना है, बट हमें सब कुछ नहीं लिखना है. So the more you practice is the more refined your answer writing gets. So that is very important. One last question that I would ask you, Shreya, is that in next 25 days, the new aspirants would be appearing for the prelims examination. आपके हिसाब से this 25 days, what should be their priorities? Or as soon as the prelims gets over, the next 4-5 months that they would get before their mains examinations, what should be the basic strategy that they should follow? So for prelims, I would say जितनी ज़्यादा revisions है उतनी कम है. So पहले तो आप सारी revisions, multiple revisions complete कर लो अपने journal studies की, but daily आप अपने CSAT targets नहीं miss करो. As we have seen, even I flunked in the prelims examination of UPSC because of CSAT only. So I think कि वो एक बहुत ऐसा crucial चीज़ है जो बच्चे miss कर देते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो ऑफिसर्स बन सकते हैं वो शायद प्रीलिम से ही पास नहीं हो पाते. तो आई वुड से कि पहले सीसैट का डेली आप टारगेट रखो, 2 घंटे बैठो एंड प्रैक्टिस करो ही करो. एंड आपके मल्टीपल रिविजन से आप टारगेट रख लो. लेट्स से आपने 4 रिविजन रखी है